Good morning, student. Welcome you all. So, hope you all are very great. Today we are going to discuss a new chapter from the book First Flight, which is titled as Madam Rides the Bus, written by Valikanan. Basically, as the title says, Madam rides the bus means madam, it means we are going to discuss about some female or bus. There are two things जो हम discuss करने जा रहे हैं in this particular chapter. So basically this chapter is about a brave girl who is 8 years old and who has a strong desire, and along with it the courage of fulfill it. मीन्स कि ये जो मैडम है, मीन्स जो वो गर्ल है, जो फीमेल है, शी हैज़ सम डिज़ायर एंड शी हैज़ इनफ courage to fulfill that desire. All right. So in this chapter we'll see कि how one wish convert into a desire. एक wish कैसे desire में convert होती है. All right. So through this through this chapter we learn कि कैसे ये जो बेबी, ये गर्ल है, ये जो मैडम है, इनका जो बेसिकली डिज़ायर था वो क्या था, शी वॉन्ट्स टू राइड इन अ बस. सो what exactly she will learn through her journey, और जो बस की जर्नी होती है उससे वो क्या सीखती हैं. All these things we are going to see in this particular chapter. This chapter is divided into 4 parts. All right, it's a very huge chapter, but it's very beautiful chapter. It's a very interesting story. So first we start the part 1, or the first part of this particular chapter, because it's divided into 4 parts. I've already told you. So we'll start today the very first part of this chapter. But before this, I'm going to tell you something very important about the writer of this story. Madam Rides the Bus, written by Valikanan, and Valikanan is a pseudonym. Pseudo क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जब हम वो इंट्रूडर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. उसमें स्यूडो होता है फॉल्स नेम. जैसे आपके घर पे आपका पैट नेम रख दिया जाता है ना, जैसे कोई भी आपका नेम हो और उसको प्यार से आपके घर वाले बुलाते हैं तो उसको पैट नेम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ स्यूडो नेम. वलिकानंद जो है, इट्स अ स्यूडो नेम ऑफ द राइटर, एंड हिज रियल नेम इज R.S. कृष्णा सेमीज इनका रियल नेम है. ऑल राइट. लेट्स स्टार्ट. Madam rides the bus, Velikanand, before you do. So before we start, or before we begin the chapter, there is given one paragraph that we learn कि इस chapter में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं. So in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction. So here the word induction, this word induction. So induction means होता है entry or the introduction of something. So whenever you join a new company or new job, so there is one rule कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. और इंडक्शन एंट्री, यानी आप किसी एक ऐसी जर्नी पे, एक ऐसी न्यू जॉब में एंट्री करने जा रहे हो. यहाँ पे क्या है कि जो 8 ईयर गर्ल है वो फर्स्ट टाइम बस की जर्नी करती है, एंड शी विल सी द वर्ल्ड आउटसाइड की हर विलेज, क्योंकि शी नेवर गो आउट फ्रॉम हर विलेज. तो वो फर्स्ट टाइम अपने विलेज के बाहर की दुनिया देखती है, और वो एक ऐसी दुनिया में एंट्री करती है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. जो एक मिस्ट्री है किसके बिटवीन, लाइफ और डेथ के बिटवीन. शी सीज the gap between knowing that there is death and our understanding of it. So देखो, जो भी हम चीज़ें जानते हैं, जो एक गैप होता है जो हम जानते हैं और हमारी डेथ के बीच, until and unless कि हम एक ऐसी जगह पर जहाँ पे एक लास्ट जर्नी क्या रहती है, हमारी डेथ, वहाँ तक हम सबको पहुँचना है. हाउ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, शी विल अंडरस्टैंड इट through his bus journey.
All right, let's start the very first paragraph of this story. So there was a girl named William Williamai, who was called Wali for short. So Williamai इनका नेम है, पूरा नेम है, जिसको हम इस शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वली. मीन्स पूरे चैप्टर में हम इनको वली से ही आइडेंटिफाई करेंगे, वली से ही पहचानेंगे. शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग. सो हेयर वली वॉज 8 years old. रिमेंबर दिस थिंग कि वो जो गर्ल थी जिसके बारे में चैप्टर है, बिकॉज दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस गर्ल एंड अ बस. तो शी वॉज 8 years old and she was very curious about everything. So her favorite pastime, so pastime means her hobby, was standing in the front doorway of her house. So basically अभी ध्यान रखना, वलियामाई जो इनका नेम है, रियल नेम है, तो ये एक बार ही है, बाकी हम वली बोलेंगे, बट यू शुड be aware of this name also. So her favorite pastime was standing in front of doorway of the house. So जो उसका favorite hobby थी, pastime था उसका, कि she always standing, जो उसका door था, दरवाज़ा था, उसके आगे वो खड़ी रहती थी अपने घर के, watching what was happening in the street outside. तो she always just watching कि बाहर, street के बाहर क्या हो रहा है, यानी उसके घर के बाहर क्या क्या हो रहा है. तो there was no playmates who those who play with you, right? जैसे आपके स्कूल में जो साथ में पढ़ते हैं उनको आपको स्कूलमेट्स कहते हैं, जो आपके रूम शेयर करते हैं उनको हम रूममेट्स कहते हैं, लाइक जो आपके साथ खेलते हैं उन्हें हम प्लेमेट्स कहते हैं. सो देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. सो जहाँ पे वो रहती है, देयर इज़ नो वन ऑन हर एज जिसके साथ वो खेल सके. सो एंड this was about all she had to do. So that is the main reason she always standing in front of her doorway and just look at outside, look all the time कि बाहर सब क्या चल रहा है. But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children play. Elaborate games means detailed game, जो भी हम गेम खेलते हैं in detail, like कैरम हो गया, या आउटडोर गेम, any outdoor game, cricket, football, and any kind of game. So but for Wali, means Wali के लिए क्या था, डोर पे खड़ा होना एज मच एज एन्जॉयबल, जितना इन्जॉय कौन करते हैं, जो चिल्ड्रन बाहर खेल रहे होते हैं ना, अदर डिटेल गेम्स, उसके जितना ही वो इन्जॉय करती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. सो जो स्ट्रीट पे जो भी वॉट एवर शी वॉज वॉचिंग दैट टाइम, इट वॉज अ वेरी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हर, because she loves to do that. That's why it's very unusual experience for her. So the most fascinating means होता है the most attractive things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. And the most attracting thing was कि जब भी बस ट्रैवल करती थी विलेज से, बिटवीन हर विलेज और टाउन के बीच में जो ट्रैवलिंग होता था, इट वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग्स फॉर हर. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, once going to the town and once coming back. So that bus is passed twice a day, means one time that bus is going to the town and the other time it's returned from the town in the village. So the sight of the bus means the view of the bus filled each time with a new set of passenger, means each time, every time वहाँ पे क्या होते थे, अलग अलग पैसेंजर होते थे, बिकॉज टाउन से कोई विलेज जाता था तो टाउन के पैसेंजर्स होते थे, राइट, और विलेज से कोई टाउन आता था तो विलेज के पैसेंजर्स होते थे. तो इससे क्या होता था, शी वुड सी द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज इन द बस और डिफरेंट पैसेंजर इन द bus, was a source of unending joy for Wali. तो this is a very unending joy for Wali, मतलब उसको बहुत overwhelming joy होता था उसके लिए, किसके लिए, वली के लिए. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. So tiny wish, so क्या होता था, डे बाय डे जैसे वो बस को देखती थी तो ग्रेजुअली क्या हुआ, स्लोली हर टाइनी विश मीन्स अ स्मॉल विश crept into her head, उसके हेड में जस्ट ग्रू
भरती गई एंड ग्रू देयर, और वहाँ पे भरती ही चली गई, उसका स्टॉप नहीं था। और सिर्फ समटाइम्स क्या होता है, जैसे हम एक सीड होता है, सीड को हम उगाते हैं, राइट, और जैसे ही वो सीड स्लोली स्लोली प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो टाइनी सीड है वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही वो जो टाइनी विश है वो क्या हो गई, बहुत बड़ी होती जा रही है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, शी जस्ट वॉन्टेड टू राइड दैट बस, भले ही वो एक बार क्यों ना। देखो क्या होता है, डिज़ायर का कभी एंड नहीं होता, और डिज़ायर ग्रू करती जाती है, बढ़ती चली जाती है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि एक विश जो किस में कन्वर्ट हो गई है, डिज़ायर में, यानी एक छोटी सी विश, एक छोटा सा सीड कन्वर्ट हो गया है इनटू अ बिग प्लांट, सो हियर इनटू अ बिग डिज़ायर। सो दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। सो ये बहुत ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गई थी, वो उसको बहुत चाह रही थी। डिज़ायर मतलब आप ईगरली किसी चीज़ को चाह रहे हो, एनी हाउ इन एनी कंडीशन यू वॉन्ट दैट थिंग। तो ये जो विश थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती थी, क्योंकि डे बाय डे शी वॉच द बस एवरी डे, मीन्स एवरी टाइम जब भी उनका बस का टाइम होता था, बॉलीवुड स्टेयर मतलब देखना, विस्टफुली सी द येलो बॉक्स विस्टफुली। अब विस्टफुली मीन्स लॉन्गली, मतलब व्हेन यू डिजायर समथिंग वेरी बैडली, मतलब कोई भी चीज़ आपको बहुत बैडली तरीके से चाहिए होती है, तो विस्टफुली। सो बॉलीवुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, मीन्स वली जो है वो बहुत लॉन्गिंगली, बहुत डिज़ायरफुली, बहुत वॉन्ट्स के साथ ही जस्ट स्टेयर्ड दोज पीपल जो बस में जा रहे हैं, अंदर चढ़ रहे हैं और बस से उतर रहे हैं। वैन इट स्टॉप एट द नियरेस्ट कॉर्नर, जब भी बस क्या होती थी, नियरेस्ट कॉर्नर पर रुकती थी, और जो ऑन और ऑफ होता था पीपल्स का, ही जस्ट स्टेयर्ड दैट थिंग ऑल द टाइम। सो देयर फेसेस वुड किंडल, सो वर्ड किंडल मीन्स सेट अ लाइट, मीन्स अ फायर है, और बट यहाँ पे किंडल का मीन क्या है, फीलिंग्स। सो देयर फेस वुड किंडल इन हर लॉगिंग्स, तो ये जो फेस है उसकी जो फीलिंग्स है, लॉगिंग्स, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, ड्रीम्स एंड होप्स। If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sight of the टाउन टू her, so whenever जो भी उसकी फ्रेंड्स होती थी, जब भी कभी बस की राइड करती, एंड what happened with them in the bus, so they tried to describe her the sight or the view of the bus, और जो टाउन का व्यू होता था उसको जब भी डिस्क्राइब करते थे वली को, सो वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो एवरी टाइम वली जब भी उसके फ्रेंड्स उसको बताते थे कि ऐसा हुआ, हमने बर्ड्स की राइड में ऐसा किया, तो शी वुड बी वेरी जेलस दैट टाइम, और वो बहुत ज़ोर से इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड। सो बेसिकली प्राउड का मतलब होता है गर्व करना या घमंड करना किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे प्राउड का मीनिंग क्या है, लेट्स सी। She said कि neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they use it often as a slang expressions of disapproval. So here the word proud means neither or nor her friend actually understand this term कि प्राउड क्या है, बट वो एज अ स्लैंग एक्सप्रेशंस क्या होता है, सी देयर स्लैंग एक्सप्रेशंस होता है इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज विद इन अ क्लोज ग्रुप। जब हम अपने क्लोज ग्रुप होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें नॉर्मली हम कुछ शॉर्टकट्स या कोड वर्ड्स यूज करते हैं जो नॉर्मली वी ओनली यूज विद अ फ्रेंड्स और इन आवर फ्रेंड्स ग्रुप ओनली, तो वो स्लैंग एक्सप्रेशंस होता है। तो जो प्राउड है वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन है जो नॉर्मली ये यूज करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, ऑफ डिसअप्रूवल। तो वो क्या है, डिसअप्रूव करना किसी चीज़ के लिए, वो है स्लैंग एक्सप्रेशंस यहाँ पे जो प्राउड किसके थ्रू बोला गया है, वली के। तो ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। सो वली वॉज वेरी स्मार्ट गर्ल। सो जैसे डे मंथ्स पास होते गए, वली ऑल द टाइम लिसन वेरी केयरफुल, मीन्स वो बहुत अच्छे से केयरफुली किस चीज़ को सुनती थी, जो भी उस बस की राइड करता था उनको बहुत केयरफुली मैनर में वो सुनती थी। एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और बहुत केयरफुली वो क्वेश्चन पूछती थी, इनडायरेक्ट वे में वो क्वेश्चन पूछती थी बस की राइड के
बारे में. If this way she picks up various small details about the bus journey. तो इस तरीके से वो बहुत सारी डिटेल्स बस जर्नी के बारे में पिक कर चुकी है, उसको पता है. मीन्स बेसिकली क्या होता है, द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज. जो टाउन है वो, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि वेन एवर शी वॉन्ट्स टू राइड इन द बस, ऑलराइट, या वेन एवर शी विल राइड इन द बस, तो क्या करेगी, ईदर वेन एवर शी यूज टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द बस जर्नी, तो हमेशा वो क्वेश्चन पुटअप करती थी रिगार्डिंग द बस जर्नी, क्योंकि अगर कभी उसको राइड करना हो तो इट विल हेल्प हर लॉट. सो द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज. जो टाउन जो था अराउंड कितने माइल्स दूर था उसके विलेज से, 6 माइल्स दूर था. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे. सो फेयर मीन्स क्या होता है, जो किराया था वो क्या था, कुछ 30 पैसे था, ओनली वन वे. मीन्स इफ शी गोज टू टाउन फ्रॉम विलेज ना, तो इट देयर फेयर वॉज 30 पैसे, और रिटर्न में भी अगर वो आएगी तो 30 पैसे उसको वापस देने होंगे. तो विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. सो एक वेल ड्रेस्ड मैन होता है, उससे उसने सुना था कि नथिंग इट्स मच एट ऑल, मीन्स इतना बड़ा अमाउंट नहीं, इट्स अ वेरी शॉर्ट अमाउंट. She heard, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, but Wali के लिए it seemed a fortune, कि क्योंकि उसने 1 मंथ और नेक्स्ट मंथ में भी उसने इतना बड़ा अमाउंट नहीं देखा था. So for her it was a very huge amount. So the trip to the town took 45 minutes. तो जो ट्रिप थी टाउन की वो इट टुक हाउ मच टाइम, इट टुक 45 मिनट्स. कितना टाइम लेती वो, कुछ 45 मिनट्स. ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे. तो अब क्या करती थी, अगर टाउन, अभी कैलकुलेशन, शी स्टार्टेड अ कैलकुलेट समथिंग, कि अगर ये टाउन तक पहुंचेगी तो शी हैज़ टू पे 30 पैसे, और इफ शी स्टेड एट हर सीट, इन हर सीट, और पेड अनदर 30 पैसे, अगर उसको रिटर्न होना है, वापस आना है, तो वो अपनी सीट पे बैठी रहे उसी सेम बस में, और 30 पैसे वापस दे दे. शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वो उसी सेम बस में वापस रिटर्न भी हो सकती है. सो 30 पैसे प्लस 30 पैसे मीन्स इफ शी वॉन्ट्स टू गो टू विलेज from village to town, or from टाउन टू विलेज. अब कुछ इस तरीके से होता है, तो ये भी वो इजीली पैसे पे कर सकती है. दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. तो मे बी वो किस टाइम की बस लेती है, 1 o'clock की आफ्टरनून की अगर वो बस पिक करती है, तो रीच द टाउन एट 1:45 मिनट्स, मीन्स 45 मिनट्स उसको टाउन तक जाने के लगते हैं. तो अगर 1 बजे की वो बस लेती है, मीन्स तो कुछ 1:45 मिनट्स उसको टाउन में पहुंचने में लग जाएंगे. एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45. और जब वो वापस रिटर्न करेगी तो 1:45 उसमें ऐड करेंगे तो 2:45 अराउंड उसको और लग जाएंगे. इट मीन्स 1 o'clock पे वो निकलती है घर से, तो अराउंड 2:45, कुछ 5 और मिनट्स अपन एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, वो घर पे पहुंच जाएगी. तो ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एट शी कैलकुलेट एंड रीकैलकुलेटेड, planned and replanned. So these things was going in her mind, कि वो थॉट करती है और फिर वो कैलकुलेट करती है, एंड शी अगेन कैलकुलेट द थिंग्स, शी प्लान एंड रीप्लान. सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लाइन, कि वी गेट टू नो फ्रॉम दिस लाइन कि हाउ शी eager about something, and when we see here her eagerness, her keenness she has. All right, so with this we just complete the first part of this particular chapter. We will continue it in our next video, means we will see the next part in our next video. Thank you for watching this video.